simple regular expressions. Okay, so the question bank which I have given you for the regular expression, we have covered up till fifth question of that particular question bank. So sixth में थोड़ा सा difference था. The difference was कि up till fifth you were being given the language and you were to find the corresponding regular expression. While in the sixth question you was given the regular expression and you were to tell the corresponding language. Okay, so first two questions of the sixth part A and part B we have done. Okay, so let us continue with this with our discussion. Is there any problem in sixth part C? Or it will be better if you tell your problems. Question sixth C. Is there any problem? Or everybody was able to do it? The 6C was A plus B asterisk double A plus double B plus AB plus BA its whole asterisk. So this was the regular expression given to us. So what will be the language class? So all words except all words. So all words over the set AB. Is it? ऐसा कैसे? Because A plus B asterisk से तो सब कुछ हम जनरेट कर सकते हैं. यहाँ हमारा क्या है? It is double A plus double B, AB, BA. ये सारे के सारे क्या है कि दो लेंथ के जितने भी वर्ड्स हैं उन सब का कॉम्बिनेशन है. इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं A plus B and A plus B asterisk. Okay, its whole asterisk. ओके, सो इसमें क्या है? टू लेंथ के सारे वर्ड हो गए, ये सारे वर्ड्स हो गए. जब आप सारे वर्ड्स में टू लेंथ के सारे वर्ड्स कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपके सारे वर्ड जनरेट हो जाएंगे. ए प्लस बी एस्ट्रिक मीन्स इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट द ए प्लस बी एस्ट्रिक. ओके, up till now we have not discussed the algebraic identities for the regular expression, so that's why I'm not able to tell you how you can convert this whole expression into the simple a plus b asterisk. Okay, so once we will be discussing the identities for regular expression, then algebraically also you will be able to convert your this bigger expression into the simple one, that is a plus b asterisk. So that is called the simplification of the regular expression. Okay, so that we will be doing after the CT is over. Okay, so I hope it is understood class. Next, 6D question. 6D, what will be the language? The regular expression was AA its asterisk plus triple A its asterisk. What will be the language class? So number of A is divisible by either 2 or by 3. Okay, so L is consisting of all words W belonging to simple A asterisk. यानी कि हमारे वर्ड्स किससे बनेंगे? केवल एज से बनेंगे. ओके, केवल एज से बनेंगे. सो ऑल वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड ओवर एज सच दैट द लेंथ ऑफ W is divisible by 2 or 3. Is it? So very correct. It is understood. आप देखिए यहाँ से हम अगर हम प्लस के, जब हमारे पास प्लस की चॉइस है तो या तो ये लेंगे या फिर ये लेंगे. अगर हमने ये वाला लिया so we can generate our words having the length which is a multiple of 2. Is it? हर बार दो एज ऐड होंगे उसके, या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी, 6 एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर हमने ये वाला पोर्शन चूज किया तो हमारी लेंथ या तो 0 होगी या 3 होगी या फिर 6 होगी या फिर 9 होगी एंड सो ऑन. मींस इट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 3. सो दैट्स व्हाई हम कोई सा भी वर्ड अगर इस लैंग्वेज से लेते हैं सो दैट विल बी आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3. इज इट? देन E, 6th E part. 6th E part is 1 plus 0 1 plus 0 0 1 its whole asterisk, and then it will be epsilon plus
0 plus double 0. What will be the language? Starting with at most 2 zeros. Yes. Starting with at most 2 zeros, followed by Okay. 1 and ending with at most 2 zeros. Yes, very good. All strings over 0 1. So this will be our alphabet. हमारे words किससे बनेंगे? या तो 0 या 1 से बनेंगे. Okay, so that's why alphabet is 0 1. Having no substring of more than 2 adjacent zeros. यानी कि एट मोस्ट 2 जीरो एक साथ आ सकते हैं, या तो सिंगल जीरो आएगा या कोई जीरो होगा ही नहीं, या फिर मैक्सिमम 2 जीरो होंगे. इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. आप देखिए, केवल अगर आप इस वाले पोर्शन को देखें तो इससे आप कोई सा भी फैक्टर लेंगे, अगर सपोज 1 वाले फैक्टर लें तो 1 1 1 आपके आते जाएंगे, जीरो कहीं आ ही नहीं रहा है. अगर कभी भी आपने ये वाला फैक्टर लिया 0 1, ओके, सो आपका एक जीरो आया लेकिन उसके तुरंत बाद एक 1 आ गया, यानी कि इस जीरो के बाद दूसरा जीरो पॉसिबल नहीं है आना. इज इट? सपोज अगर आपने तीसरा वाला फैक्टर लिया 0 0 1, तो आपको 2 जीरो साथ है लेकिन उसके बाद एक 1 आ गया, यानी कि इन 2 जीरो के साथ तीसरा जीरो नहीं आ सकता. तो जब भी हम इन फैक्टर्स से मिलाकर के कोई वर्ड बनाएंगे तो उस वर्ड में एट दी मोस्ट 2 जीरोज आ सकते हैं, 2 से ज्यादा जीरोज नहीं आ सकते साइमल्टेनियसली कहीं भी. इज इट? वैसे 2 से ज्यादा आएंगे लेकिन एक साथ 2 से ज्यादा कहीं नहीं आएंगे. इज इट? ओके. अब इसके साथ जो बाकी ये एक्सप्रेशन लगी हुई है, इसका क्या मतलब है? इट इज एप्सिलॉन. अगर ये मान लीजिए इससे मैंने एप्सिलॉन लिया तो जो भी वर्ड इससे जनरेट हुआ था वही वर्ड आएगा, यानी कि एट द मोस्ट 2 जीरोस. ओके. अब अगर मैंने इसको लिया तो आप देखिए मेरा वर्ड किससे एंड होगा? 0 से एंड होगा. अगर मैं इससे लिया तो मेरा वर्ड किससे एंड होगा? डबल 0 से एंड होगा. अगर आप इस वाले फैक्टर में देखें, पहले वाले फैक्टर में, तो आपके एट द मोस्ट 2 एडजेसेंट जीरोस आर पॉसिबल इन योर वर्ड, लेकिन आपका वर्ड हमेशा किससे एंड होता है? 1 से. आप देखिए इस फैक्टर में भी 1 से एंड हो रहा है, इस फैक्टर से करेंगे तो भी 1 से एंड होगा, इस फैक्टर से करेंगे तो भी 1 से एंड होगा. लेकिन हमारे सारे वो वर्ड्स जिनमें एट द मोस्ट 2 जीरोस हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सिंगल जीरो से एंड हो जाए या डबल जीरो से एंड हो जाए. इज इट? सो दैट्स व्हाई ये अलग से इसके अंदर ऐड किया गया. सो ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 and 1 हैविंग नो सब स्ट्रिंग ऑफ मोर देन 2 एडजेसेंट जीरोस. इज इट क्लियर? देन F part is A plus B, it's a string. तो सिंपल है. बताइए क्या होगी लैंग्वेज? क्लास. Sir, all words over A, B having either single A or all strings starting with B. Yes, all strings starting with B. All strings starting with B or string is single A. इस तरह की लैंग्वेजेस को आप चाहें तो इस तरह के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A and then B, then BA, then BB, then BAB, BBA, then BBB, and so on. So here also you can see that single word A is there and all other words are starting with B. So इस B से starting है, उसके बाद देखें तो यहाँ एप्सिलॉन, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ फिर सिंगल लेंथ वाले खत्म होगा तो AB, BA, BB, and similarly you can write here BAA also. Okay, so it is all and so on. Is it? So in this manner you can show the language. और बाकी language में आप लिखें तो वो भी सही है. ठीक है. So this was question number 6. Then come on question number 7. Let us move to the next slide. So now we will be discussing question 7. Question 7 में पहली A part, यहाँ आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है. सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 1 एंडिंग विद 00 एंड बिगिनिंग विद 1. ये तो सिंपल है.
क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। 1 0 प्लस दोनों को फुल एस्ट्रिक 0 + 1 asterisk 0 0 simple है, is it? Similarly B, the set of all strings over 0 1 beginning with 00, okay, so it will be 0 0 0 + 1 asterisk, सबने कर लिया होगा ये तो। Then C part, the set of all strings over AB with 3 consecutive B's, ये भी आसान है। क्या लिखूं जल्दी से बताइए, जिसमें 3 कंसेक्यूटिव बी आते हैं। क्लास A plus B asterisk A + B एस्टिक आप लोग बताते चलिए, देखिए करने आप ही लोगों ने, इट इज योर प्रैक्टिस, ठीक है, मैं केवल B जहां पे को प्रॉब्लम की मैं बताऊं। C A B's asterisk and A + B asterisk, is it? Then D part, D part is set of all strings over AB in which there are at least 2 occurrences of B's between any 2 occurrences of A's। ये बताइए ये क्या लिखा है इसका, at least A plus B asterisk 2 occurrences of B's between any 2 occurrences of A, between any 2 A's, something like this, is it? So क्या 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 बता रहे थे बताइए। B, yes, you were telling something, क्या एक्सप्रेशन आएगा बताइए। चलिए मैं लिख रहा हूं, B + ABB its whole asterisk, is it correct or not? Just tell me। मुझे क्या चाहिए, मुझे कम से कम 2 occurrences चाहिए B के बिटवीन एनी 2 occurrences ऑफ A's। तो अगर इस A के साथ में डबल B लगा देता हूँ तो जब भी ये फैक्टर रिपीट होगा तो A आएगा, उसके बाद फिर डबल B आएगा, फिर A आएगा, फिर डबल B आएगा, तो हर 2 A के बीच में 2 B's मैंने इंश्योर कर लिए इस फैक्टर के थ्रू। लेकिन मैंने कहा कि 2 या 2 से ज्यादा भी B's आ सकते हैं, एटलीस्ट 2 occurrences ऑफ B's, यानी कि B के occurrences 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं केवल ABB लूं तो मेरे हर 2 A के बीच में 2 ही B आ रहे हैं, इज इट? और मुझे उससे ज्यादा चाहिए, तो मैंने कहा कि B का एक फैक्टर साथ में लगा लिया, क्योंकि मैं एनी नंबर ऑफ B's आई कैन ऐड थ्रू दिस फैक्टर B। सो अगर मैं B + ABB कर लूं एंड इट्स होल एस्ट्रिक, तो जब भी मैं इस ABB को लूंगा, सपोज इट कम्स ABB, उसके बाद मुझे सपोज 4 B चाहिए अगले A से पहले, इज इट? तो क्या होगा, ये मैं अगली 2 बार स्टार के लिए इस वाले B को चूज कर लूंगा तो एक B जनरेट होगा, फिर अगले के लिए एक B जनरेट होगा, फिर वापस मैं फैक्टर ये ABB लूंगा, सो ABB, समथिंग लाइक दिस। सो 2 occurrences जो A के थे उनके बीच में कितने B आए, 4 B आए। अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं इसी तरह से 3 B जनरेट कर सकता हूँ। 5 चाहिए तो 2 B तो एक बार में आए और बाकी B's किससे जनरेट होंगे, इस वाले फैक्टर से, इज इट? तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम एक है कि मेरे जितने भी वर्ड्स हैं वो सब डबल B से एंड हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट फैक्टर जब भी मैं A से क्लोज करने के लिए चूज करूंगा तो डबल B से होगा। या सपोज अगर ये वाला फैक्टर नहीं भी चूज किया, केवल इसी वाले फैक्टर को लिया, तो B से एंड होगा, यानी कि हमेशा मेरा जो वर्ड एंड होंगे वो B या डबल B से एंड हो रहे होंगे, ठीक है, या ट्रिपल B से या 4B से, 20 से एंड होंगे, कभी भी A से एंड नहीं होंगे। ओके, सो मेरे फैक्टर कौन कौन से बचे, एक तो A से एंड कराना मुझे कि A से एंड हो सकता है, इज इट? सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, A लिख लिया। दूसरा किससे एंड हो सकता है, A B से एंड हो सकता है, इज इट? ओके, और तीसरा क्या है, बाकी जितने भी पॉसिबल है वो सब इसमें आ जाएंगे, तो इसलिए मैं क्या ले लेता हूँ, एप्सिलॉन, इज इट? तो आप देखिए, अगर मेरा वर्ड A से एंड होता होगा तो इस सबको बनाने के बाद मैं A लिखूंगा, जैसे ही A लिखूंगा, अगर मान लीजिए ये वाले फैक्टर के बाद भी A लिखा तो कम से कम 2 B तो आए होंगे, और अगर ये वाले फैक्टर के बाद A लिखा तो 2 से ज्यादा B's मेरे पास मौजूद होंगे, इज इट? और अगर मेरा उस A से एंड नहीं हो रहा तो B से एंड हो सकता है, A B से एंड हो सकता है, तो A के बाद एक सिंगल B आ गया, और A के बाद अगर डबल B या उससे ज्यादा B हैं तो वो सारे वर्ड्स किससे जनरेट होंगे, इसी फैक्टर से जनरेट होंगे। क्योंकि देखिए A डबल B है तो मैं लास्ट फैक्टर इस वाले को ले लूंगा, तो A डबल B, तो A डबल B से हो जाएगा, और A डबल B से ज्यादा है मतलब A ट्रिपल B है तो सेकंड लास्ट फैक्टर ये लूंगा, उसके बाद लास्ट फैक्टर ये वाला ले लूंगा B, तो A ट्रिपल B हो जाएगा। इस तरह से A 4B, A 5B एंड सो ऑन, एवरीथिंग एल्स कैन बी जनरेटेड थ्रू दिस। सो दिस विल बी द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन।
So is there somebody who has written the same regular expression, या केवल इतना पार्ट भी किसी ने लिखा है? Is it? Yes, somebody who has written this. सर डिफरेंट लिखा है क्या लिखा है बताइए? सर a प्लस बी एस्ट्रिक A plus A. B asterisk फिर a डबल बी A, ये फिर इस A के बाद A डबल बी, यस सर A डबल बी। तो देखिए आपका स्ट्रिंग तो वैसे ही गलत हो गया। नहीं हर सर दो अक्रेंसेस फिर b एस्ट्रिक a बी एस्ट्रिक ए, कुछ ऐसा लिखा है? नहीं सर a प्लस बी एस्ट्रिक देन a डबल बी फिर b एस्ट्रिक a ओके, ए प्लस बी एस्ट्रिक ए डबल बी, और इसके बाद क्या लिखा है? b एस्ट्रिक a बी एस्ट्रिक ए। देखिए ये वर्ड गलत क्यों होगा? देखिए इतना हिस्सा आपने फिर भी ठीक लिया कि ए डबल बी आपने इंश्योर किया, उसके बाद एक बी स्टार लगा के दो से ज्यादा बीज इंश्योर किया और एक ए लिया, लेकिन ये तो लास्ट में आया, केवल एक ही बार तो आएगा। मुझे क्या चाहिए? इसका रेपिटेशन चाहिए। इज इट? सो दैट्स वाई इसके ऊपर स्टार तो आना ही चाहिए था। दूसरे जहां पे भी आपने ए प्लस बी एस्ट्रिक लिखा, वहां ए और बीज आपके हमेशा मिक्स हो जाएंगे। इस ए प्लस बी एस्ट्रिक से आई कैन जनरेट ए सिंगल ए ऑल्सो। अगर मैं इससे सिंगल ए जनरेट किया तो उसके बाद क्या आएगा? ए बी बी, ठीक है। सपोज स्टार के लिए 0 ले लिया ए, तो इसके आगे वाला हिस्सा, जो हिस्सा इससे जनरेट हो रहा है ये तो ठीक है, बट इससे मैंने सिंगल ए जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन दो ए के बीच में कोई बी है क्या? ना, कोई भी नहीं है। इज इट और नॉट? क्लियर हुआ? सो दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। मुझे हर जगह जहां, यस सर स्टार्टिंग में बी एस टी लगा दे सिंपल। स्टार्टिंग में बी एस टी किस जगह? इस ए से पहले यहाँ बी एस टी लगा दूं? सर ए प्लस बी एस टी की जगह सिंपल बी एस टी लगा दे तो। ओके, अगर सिंपल बी एस्ट्रिक लगा दें, चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, बी एस्ट्रिक ए बी 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 एस्ट्रिक ए। तो अब इससे आप देखिए इससे क्या जनरेट होगा? बी एस्ट्रिक, यस, दो ए के बीच में कम से कम दो बीज आ जाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन ए दो ही बार तो, एक ही बार तो आया, ये ए एक ही बार तो रिपीट हुआ। मान लीजिए मेरा वर्ड है ए बी बी ए, फिर डबल बी ए, दिस विल बी ए वर्ड जहां पे हर दो ए के अक्रेंसेस के बीच में कम से कम दो भी आ रहे हैं। तो क्या ये वर्ड आप इससे जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना? इज इट? तो यानी कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जहां भी आपने ए बी 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 स्टार ए लिया है, तो इसका कम से कम आपको रेपिटेशन लेना पड़ेगा, इसके ऊपर स्टार लगाना पड़ेगा, ताकि ये रिपीट, ये फैक्टर आप रिपीट कर सकें। तो देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ वही कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखी थी, इसमें अगर आप देखें, मैं अगर इसकी जगह लिख दूँ बी प्लस ए बी 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 एस्ट्रिक एंड इट्स होल एस्ट्रिक, तब भी तो काम करेगा ये। इज इट? ये तब भी काम करेगा। इज इट? या मैं इसके बाद ए बी 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 एस्ट्रिक एंड इट्स होल एस्ट्रिक, अगर ये भी कर लूं तो भी काम करेगा। अब भी आप देखिए, अगर इसका जितनी बार भी आप रिपीट करेंगे, हर दो ए के बीच में कम से कम दो बीज आप इंश्योर कर रहे हैं। इज इट क्लियर है? तो यानी कि जो पहला फैक्टर मैंने लिखा है, ये चाहे मैं ये वाला लिखूं तो भी सही है, ये वाला लिखूं तो भी सही है, और ये वाला लिखता हूं तब भी ठीक है। इज इट क्लियर होगा कि नहीं क्लास? उसके बाद Yes, चूंकि इन तीनों में से किसी भी फैक्टर से जनरेट करूं, मेरा वर्ड किससे एंड होगा? कम से कम डबल बी से एंड होगा, डबल बी या ज्यादा बी से एंड होगा। तो अगर मुझे सिंगल ए से एंड करना है या ए बी से एंड करना है, तो मैं उसके लिए मुझे ये वाला फैक्टर इसके आगे लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट एक बार अगर आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू। ये क्लियर हो तो आगे बढ़े क्लास। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा ट्रिकी आता है तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। Is it clear? Can we move forward? Yes. Okay. Then come on E. E is also a tricky one. Okay. It has that set of all strings over 0 and 1 having at most one pair of zeros or at most one pair of ones. अभी इसको प्रॉब्लम को डिवाइड कर लीजिए, at most one pair of zeros कर लेते हैं हम केवल, ठीक है।
तो एटमोस्ट वन पेयर ऑफ जीरो, या तो जीरो का कोई पेयर ही ना आए। अगर जीरो का कोई पेयर नहीं आना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 0 1 इट्स होल एस्ट्रिक, इज इट और नॉट क्लास? जीरो का कोई पेयर इसके अंदर नहीं आ सकता। आप देखिए 1 कहीं भी कितनी भी बार आ सकते हैं, बट जीरो का कोई पेयर नहीं आ सकता। इज इट? ये क्लियर है क्लास? क्लियर है? 1 प्लस 0 1 एस्ट्रिक, इसमें जीरो का कोई भी पेयर, क्योंकि देखिए जहां भी जीरो आएगा उसके बाद एक 1 जरूर आ जाएगा, तो अगला जीरो इस जीरो के साथ नहीं आ सकता, तो जीरो का पेयर कभी भी नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? सो इसके बाद इसमें अगेन वही प्रॉब्लम है कि जीरो का पेयर तो नहीं आएगा, लेकिन वर्ड हमेशा 1 से एंड होगा। अगर ये वाला फैक्टर लें तब भी 1 से एंड होगा, 0 1 वाला फैक्टर लें तब भी 1 से एंड होगा। अगर मुझे 1 से एंड नहीं कराना, 0 से एंड कराना, तो यानी कि इसके लास्ट में 0 भी आ सकता है, तो यानी कि मैं इसमें नल प्लस 0, अगर इतना हिस्सा मैं लिखता हूं, सो इट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन corresponding to all words over 0 and 1 which do not have any pair of zeros. Is it? अब इसके बाद दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं कि कोई पेयर नहीं है, तब तो ये हो गया। अगर एक पेयर हो जीरो का, तो यानी कि जीरो का एक पेयर, यानी कि एक डबल जीरो तो साथ में आएगा ही आएगा। इस डबल जीरो से पहले क्या आ सकता है? इज इट? इस डबल जीरो से पहले कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसमें डबल जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि यही वाली एक्सप्रेशन। इज इट और नॉट? कौन सी एक्सप्रेशन? यही वाली एक्सप्रेशन। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 0 1 का होल एस्ट्रिक। तो इस 1 प्लस 0 1 के होल एस्ट्रिक से कभी भी पेयर ऑफ जीरोज नहीं बनेगा, और ये हमेशा किससे होगा, 1 से एंड होगा, तो यानी कि ये डबल जीरो भी आया तो इसके साथ भी कोई पेयर नहीं बनेगा। इज इट? सो एक तो ये बन गया। अब इसके बाद क्या आ सकता है? अब देखिए एक डबल जीरो तो आ चुका, अब मैं इसके बाद भी 1 प्लस 0 1 एस्ट्रिक लिख दूं तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। उसमें गड़बड़ क्या होगी, अगर मैंने 1 से शुरू किया तब तो ठीक है, जीरो के इस डबल जीरो के बाद 1 आ गया, लेकिन अगर मैंने 0 1 से स्टार्ट किया तो इस डबल जीरो के बाद एक और जीरो आ गया, तो मेरे पास जीरो के कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। इज इट? यानी कि मुझे इसके बाद जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं लेना है, so that's why I will take only ones। तो या तो एक सिंगल 1 हो सकता है, मल्टीपल 1 भी हो सकते हैं, और उसके बाद कहीं जीरो, ये सिंगल 1 के बाद जीरो कभी भी आ सकता है। ओके, तो मैंने लिया जीरो, और ये कितनी बार रिपीट हो सकता है, कितनी भी बार रिपीट हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स एस्ट्रिक। इज इट? तो इस तरह से मैंने क्या किया कि इंश्योर किया कि केवल एक ही पेयर ऑफ जीरोज जो है मेरा आएगा। इन दिस सिमिलर मैनर यू कैन राइट फॉर एट मोस्ट 1 पेयर ऑफ वंस। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं उसको प्लस कर, ये सारे के सारे फैक्टर किससे आएंगे, प्लस करके आएंगे। एक फैक्टर ये है, एक टर्म ये है, फिर प्लस करके एक टर्म जिसमें कोई पेयर ऑफ 1 नहीं आएगा, फिर इसी तरह से प्लस करके एक टर्म जिसमें केवल एक पेयर ऑफ 1 आएगा। तो इन दिस सिमिलर मैनर वी कैन राइट दैट एक्सप्रेशन आल्सो। ओके, सो दिस आई एम लीविंग एज होम एक्सरसाइज फॉर यू। उसको लिखिए एक बार और उसके बाद चेक करिए, ठीक है? इज इट क्लियर क्लास? सर ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है 7th का ई। सर ये ई वाला दूसरा है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में दूसरा है? अच्छा, Yes. सर इसका मतलब जो मैंने आपको भेजा है और जो मेरे पास है इसमें कुछ डिफरेंस है। ओके, चलिए मैं चेक कर लूँगा एक बार। क्या क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन बैंक में क्या क्वेश्चन है, एक बार मुझे पढ़ के बताएंगे? सर नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 3। नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, ओके ओके। सो हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने अलग से ऐड किया होगा बाद में। ये एफ है मेरे पास, जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी इन विच नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 3। दिस इज 7th एफ। इज इट क्लियर? सो ये 7th ई आपके पास शायद उसमें नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 1 हैविंग एट मोस्ट 1 पेयर ऑफ जीरोज और एट मोस्ट 1 पेयर ऑफ वंस। This question is there in the question bank or not? No, sir. नो सर। It is not there. Okay, तो 7th का A B C D E तक होंगे, F नहीं होगा, या है? नो सर, एफ नहीं है। F नहीं है। ओके, सो हो सकता है मैंने अपडेट किया होगा,
तो मेरे पास मेरे अपडेट, आपको शायद पुराना वाला क्वेश्चन बैंक चला गया, कोई बात नहीं। अब आप अपने पास क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये जो 7th E मैंने डिस्कस किया है, इट इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 and 1, नोट डाउन, सेट ऑफ, बल्कि लिख देता हूं मैं, इट इज सेट ऑफ ऑल strings over 0 1 over 0 1 having at most one pair of zeros or at most one pair of ones. Is it clear? So this is 7th E, और जो आपके पास 7th E में है इसको 7th F कर लीजिए. The set of all strings over AB in which number of occurrences of A is divisible by 3. तो ये चलिए बताइए, अब 7th F बताइए. Number of A is divisible by 3. क्या लिखिए एक्सप्रेशन, इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे. देखिए 3 के मल्टीपल में एज चाहिए, तो मैं 3 के मल्टीपल में एज लिख लीजिए. 3 के मल्टीपल में एज एक तो हो सकता है मेरे पास कोई ए हो ही ना, केवल बीज हो, तो मेरे पास क्या आएगा, आई विल बी हैविंग बी एस्ट्रिक. या फिर मेरे पास 3 के मल्टीपल में, यानी इसका कुछ एस्ट्रिक, कुछ इस तरह से बनेगा. इज इट? अब ये 3 जो ए की पोजीशन है, इनके पास जो खाली पोजीशन बची उनमें क्या आ सकता है, उन सब में क्या आ सकते हैं, बी एस्ट्रिक, बीज आ सकते हैं. क्योंकि मैंने ये तो कहा नहीं कि मुझे 3 ए कंटिन्यूशन में चाहिए, 3 एज के बीच में एनी नंबर ऑफ बीज में भी देर हो सकता है कोई भी ना हो. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग बी एस्ट्रिक. ओके, सो बी एस्ट्रिक. और अगर इसको मैं होल एस्ट्रिक कर लूँ तो मैं इसको कितनी भी बार रिपीट कर सकता हूँ. यानी कि मेरे पास कोई जीरो, कोई ए नहीं है, उसके बाद अगर मैंने इस वाले फैक्टर को लिया तो 3 ए जनरेट होंगे. बीज कितने भी आए कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 3 ए जनरेट होंगे. सो मेरे जो भी वर्ड बनेगा उसमें लेंथ क्या होगी, 3 से डिविजिबल. उसके बाद अगर इस एस्ट्रिक को मैंने एक बार फिर रिपीट किया तो वापस 3 ए जनरेट होंगे. इज इट? तो 6 ए हो जाएंगे. वापस एक बार किया तो फिर 9 ए हो जाएंगे, लाइक दिस. सो माई नंबर ऑफ एज इन माई वर्ड विल बी मल्टीपल ऑफ 3s. ओके, सो दूसरे शब्दों में कहें तो नंबर ऑफ एज विल बी डिविजिबल बाई 3s. इज इट क्लियर क्लास? सर स्टार्टिंग में जो बी एस्ट्रिक लिखा है वो जरूरी है लिखना? ये लिखना जरूरी इसलिए, देखिए सपोज मैं इसको नहीं लिखता हूँ, केवल इतना ही हिस्सा है मेरे पास. अब देखिए एप्सिलॉन विल बी ए वर्ड इन दिस लैंग्वेज और नॉट? इट विल बी. इज इट? बट एप्सिलॉन आप जनरेट कर सकते हैं. इस स्टार के लिए नल 0 ले लीजिए, आपने इस फैक्टर में से कुछ भी नहीं लिया, एप्सिलॉन तो जनरेट हो गया. लेकिन सपोज अगर मुझे सिंगल भी जनरेट करना हो, सिंगल भी विल आल्सो बी ए वर्ड जिसमें कि मेरे नंबर ऑफ एज 0 है, यानी कि डिविजिबल बाई 3 है. तो क्या मैं सिंगल भी जनरेट कर सकता हूँ इस एक्सप्रेशन से? जस्ट सी, क्योंकि जैसे ही मैं इस स्टार के लिए 1 लूंगा वैसे ही मेरे 3 ए तो आएंगे ही आएंगे. इज इट क्लियर और नॉट? जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ए कोई भी नहीं चाहिए, मुझे केवल बीज चाहिए. इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरा नेक्स्ट वर्ड डबल बी हो, इसमें भी नंबर ऑफ एज क्या है, 0 है. क्लियर होगा कि नहीं क्लास? तो इसीलिए मैंने यहाँ बी एस्ट्रिक अलग से लिखा है कि अगर मुझे केवल इनमें से कोई वर्ड जनरेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस स्टार की जगह लूंगा 0, तो यानी कि इस फैक्टर से कुछ भी जनरेट नहीं होगा. और मुझे अगर मान लीजिए डबल बी जनरेट करना तो इस वाले स्टार के लिए मैं क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा, एंड 2 बीज विल गेट जनरेटेड. अगर सिंगल बी जनरेट करना है तो फॉर दिस स्टार आई विल टेक 1 एंड सिंगल बी आई कैन जनरेट. अगर मुझे नल करना है तो नल चाहे मैं इस वाले से जनरेट कर लूँ चाहे इस वाले से जनरेट कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. Is it clear class? So that's why writing this B asterisk is necessary. Otherwise आपके ये वाले words include होने से रह जाएंगे लैंग्वेज में, and so on. Is it clear है? Yes sir. Class. So now we can come on the next question, question number 8. ए तो हो गया होगा, सिंपल है. द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 1 और मोर zeros फॉलोड बाई ए 1.
क्या लिखा है इसका, जल्दी से बताइए। 1 और मोर zeros, so it will be 0 0 asterisk and followed by a 1, so 1. सिंपल। आपने क्या करना, सिंपल लैंग्वेज को पढ़ना है और लैंग्वेज का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के हिसाब से आपको लिखते जाना। कई बार आपको जो सीक्वेंस है वो एज इट इज मिलेगा। एक तरह से आप समझिए जैसे आप एफएज में सक्सेस पाथ फॉलो करते थे ना, वैसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस के जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको सक्सेस पाथ फॉलो करना है। वो जैसा कह रहा है वैसा करते जाइए। जैसे ने कहा द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 1 और मोर जीरोज। 1 और मोर जीरोज यानी कि एक तो आएगा ही आएगा, तो एक जीरो लिखा, और ज्यादा भी आ सकते हैं। अब ज्यादा कितने आ सकते हैं पता नहीं, सो दैट्स वाई 0 asterisk followed by a 1. So followed by a 1. So what you are doing, you are simply following the success path and you are writing your regular expression. Is it clear, class? Come on, the Yes. next one, that is B. All strings that contains any order of A's and B's. Class, any order of A's and B's means A और B से word बनेगा। कौन सा word? ए और बी आ सकते हैं किसी भी ऑर्डर में कितनी भी बार। क्या आएगी एक्सप्रेशन? whole asterisk. ए प्लस बी एस्ट्रिक, सिंपल। इज इट? सिमिलरली नेक्स्ट वन, ऑल वर्ड्स दैट एंड आइदर विद ए और विद डबल बी, सी। सो इट विल बी, एंड के लिए तो शुरू में तो कुछ भी आ सकता है। एंड किससे करना चाहिए? या तो ए से या फिर डबल बी से। आई होप एवरीबडी हैज रिटन लाइक दिस, क्लास। क्लियर? इज इट क्लियर क्लास? सिंपल Yes, है। sir. ओके। डी, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट हैव इवन नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय ऑड नंबर ऑफ बीज। इवन नंबर ऑफ एज कैसे लिखूंगा बताइए? अब आप देखिए वापस इसमें सक्सेस पाथ देख रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? इवन नंबर ऑफ एज चाहिए। इवन नंबर ऑफ एज कैसे मिलेंगे? Double A. Double A का whole asterisk. एस्ट्रिक। उसके बाद इसके बाद क्या चाहिए कि जब इवन नंबर ऑफ एज मिलने बंद हो जाए तो क्या मिले? ऑड नंबर ऑफ बीज। सो ऑड नंबर ऑफ बीज के लिए क्या होगा? इवन नंबर ऑफ बीज ही चाहिए, बाद में एक बी और ऐड कर दूंगा। इज इट? सो इवन नंबर ऑफ बीज, इवन नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इवन नंबर ऑफ बीज। ये तो ये बन गया। अब मुझे चाहिए ऑड नंबर ऑफ बीज, तो मैंने एक बी और ऐड कर दिया। तो अगर इवन नंबर ऑफ बीज में एक बी और ऐड कर दूंगा तो ऑड नंबर ऑफ बीज हो जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? डी। देन E. E में क्या है? It is L is equal to A to the power n such that n is divisible by 2 or 3 or 5. बता सकते हैं क्या होगी इसके रेगुलर एक्सप्रेशन? फास्ट। अगर सिंपल डबल ए, यस डबल ए एस्ट्रिक, अगर 2 से डिविजिबल चाहिए होता तो मैं केवल इतना लिखता। अब मुझे अगर 3 से डिविजिबल चाहिए होता तो मैं केवल इतना लिखता। और अगर मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है तो मैं इसका प्लस करके लिखता। अभी पीछे एक्सप्रेशन आई थी उसके करस्पॉन्डिंग आपने लैंग्वेज निकाली थी क्वेश्चन नंबर 6 में। इज इट? अब इसमें क्या 5 और है, तो अगर 5 चाहिए तो मुझे मैं क्या लिखता? 5 इज इट्स एस्ट्रिक। और चूंकि मुझे इन सब का और चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड ए प्लस। So it is for E. Then F. F में क्या है? The set of all strings over A, B beginning and ending with A. क्या लिखा है इसका? तो सभी ने कर लिया होगा। Beginning and ending with A. Class. क्या लिखूं बताइए जल्दी से? Sir, A plus A plus B asterisk A. और फिर A. Everybody has written this. It is correct, but इसमें थोड़ी सी कमी है। मैं इसमें कुछ और ऐड कर रहा हूँ। Will it work or not? Just tell me. The single word A, it will start with an A, it will end with an A. But single word A, can you generate from this? Yes or no? No sir. नहीं कर सकते ना। तो जबकि सिंगल ए भी एक ऐसा वर्ड होगा लैंग्वेज के अंदर जो ए से ही स्टार्ट होता है। इट इज द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट लेटर। ओके, सो ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ए से ही एंड हो रहा है, बट इट इज नॉट कवर्ड इन इट। सो बेसिकली व्हेन आई राइट ए प्लस बी एस्ट्रिक ए, सो आई एम
writing all the words which starts with an A, which ends with an A, but having the length at least 2. तो अगर वन लेंथ वाला कोई वर्ड है जो ए से ही स्टार्ट हो सकता है और ए से ही एंड हो सकता है, so that has to be included explicitly. Okay, so it is also a tricky one. नॉर्मली अगर आप इतना भी लिख करके आएंगे तो ज़्यादातर एग्जामिनर्स इसको करेक्ट करेंगे, इज इट? बट अगर आप ये भी लिख के आते हैं तो इट शोज दैट योर थॉट प्रोसेस इज वेरी एक्यूरेट. ओके, क्लियर क्लास? क्लियर है सर? देन कम ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज जी. G is 1 plus, oh sorry, L is equal to 1 to the power 2n plus 1 such that n is greater than or equal to 0. सिंपल है. क्या क्या लिखेंगे बताइए फटाफट, फास्ट. What I should write? 1 and then double 1 asterisk. एक तरह से अगर आप देखें 1 to the power 2n plus 1 क्या है? I want odd number of ones. I want odd number of ones. तो odd number of ones कैसे जनरेट करूंगा? पहले even number of ones जनरेट करूंगा 1 1 asterisk और उसके बाद 1 ऐड कर दूंगा. अब चाहे मैं ये लिखता, चाहे मैं 1 1 asterisk 1 ये लिख देता, दोनों एक्सप्रेशंस करेक्ट. इज इट? दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. क्लियर है क्लास? n की वैल्यू देखिए मिनिमम 0 है, तो जैसे ही n की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक 1 आएगा, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1 हियर. उसके बाद मेरे पास क्या आएंगे? 1 2 के मल्टीपल में 2n. इज इट? सो n की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो 2 1 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 1 हो जाएंगे. दैट्स व्हाई मैंने 2 1 लिए और इसका क्या किया? रेपिटेशन किया. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बाय व्हिच आई हैव डिजाइन्ड इट. क्लियर है क्लास? देन h part says L is equal to a to the power n b to the power m such that n is greater than equal to 4 and m is greater than equal to 3. Is it? So क्या है ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास? Just tell me. 4 times A. Sir, a की power 4 a asterisk. Yes, a asterisk and then b की power 3 b and cube then b asterisk. asterisk. Is it? तो यही लिखा है ना सबने? So this is the answer H. Then on the similar lines, H I is important. Okay, I किया किसी ने? It says that L is equal to a to the power n b to the power m such that n greater than equal to 1 m greater than equal to 1 और साथ में एक कंडीशन और लगा दी, एन एम मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. इज इट? तो अब इसके लिए एक्सप्रेशन बताइए क्या लिखना है. सर A asterisk. यस, इट इज ट्रिपल A asterisk B asterisk B asterisk plus very good A asterisk A asterisk triple B. सर सिंगल A. अच्छा हाँ सर ये भी है. डबल B asterisk double B B asterisk and B asterisk plus A asterisk and then triple B B asterisk. Is it? So ये लिखा, ये कैसे आया? अब आप देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन साथ में इस कंडीशन की वजह से n और m पे कुछ एडिशनल रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगी. जैसे n की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, m की वैल्यू क्या होगी? कम से कम 3. इज इट? सो अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि a एक बार आया तो a एक बार आया या ज़्यादा बार आया, ठीक है? तो अगर a एक बार आया और ज़्यादा बार आया तो ये कम से कम 3 बार जो है b मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम अगर एक a आया तो कम से कम 3 b आए, तभी तो n मल्टीप्लाइड बाई m. ओके, n मल्टीप्लाइड बाई m शुड बी ग्रेटर देन 3. इज इट? इसी तरह से यहाँ 2 है, 2 2 दूनी 4 तो 3 से बड़ा होगा, ऐसे यहाँ 3 और 1 3 से बड़ा होगा. इज इट? तो यही कॉम्बिनेशन मैंने देखी कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो इस तरह से मैंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन की. So it was needing a little bit more analysis. So let us move to the next question. 8th आई तक आ गए हम.
जे, सिंपल है जे। तो ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 0 1 लिख लेंगे, 0 + 1 एस्ट्रिक 0 1, ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ जीरोज। क्या लिखा है बताइए? इट इज 1 एस्ट्रिक 0 1 एस्ट्रिक 0 1 एस्ट्रिक its whole asterisk and then 1 asterisk। वही बिल्कुल जैसे हमने बी और ए वाला लिखा था कि नंबर ऑफ एज और मल्टीपल ऑफ थ्रीज, यहाँ हमारा क्या है बेसिकली नंबर ऑफ जीरोज आर मल्टीपल्स ऑफ 2, इज इट? ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ जीरोज, सो नंबर ऑफ जीरोज आर मल्टीपल ऑफ 2 या नंबर ऑफ जीरोज आर डिविजिबल बाई 2। सो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमने लिखा है। और चूंकि अगर डिविजिबल बाई 2 है, अगर जीरो नंबर ऑफ जीरोज हैं यानी कोई जीरो है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 1 एस्ट्रिक हियर। जहां आप पूछ रहे थे कि हमने बी एस्ट्रिक क्यों लिखा है, इज इट क्लियर है क्लास? जे के, इज इट क्लियर? कैन वी मूव? यस सर। एल, ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ, सॉरी जस्ट ओके मैं कुछ गड़बड़ कर गया। ये के नहीं, ये इट वाज एल, के रह गया है पार्ट, इज इट ओके? कहीं गड़बड़ हुआ करे तो बता दिया करिए। के पार्ट रह गया। के पार्ट क्या है? ऑल स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग इन 0 1, ओके? सो नॉट एंडिंग विद 0 1, ठीक है ओके? तो जो ये वाला था, ये वाला क्या था? एंडिंग विद 0 1, एंडिंग विद 0 1। तो ये तो आसान था, 0 + 1 एस्ट्रिक 0 1 लिख दिया। बट नॉट एंडिंग विद 0 1, तो क्या लिखूंगा बताइए? 0 + 1 एस्ट्रिक 0 + 1 asterisk एंड देन 00 00 + 10 + 10 + 1 1। इज इट क्लियर और नॉट? यानी कि ये 0 1 से एंड कर रहा था, अगर 0 1 से एंड नहीं करेगा तो किससे एंड करेगा? या तो 00 से एंड करेगा, या फिर 10 से एंड करेगा, या 1 1 से एंड करेगा। इज इट क्लियर क्लास? इसके साथ मैं कुछ और ऐड कर रहा हूं, दैट इज +0 + 1 + एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन विल बी ए वर्ड व्हिच विल नॉट एंड विद 0 1। देखिए जब मैं एंड विद 0 1 कहता हूं तब तो मुझे 0 + 1 एस्ट्रिक 0 1 लिखना ही लिखना है, यानी कि ये इसमें मिनिमम 2 लेंथ के वर्ड होंगे और 0 1 से एंड करेगा। लेकिन जब नॉट एंडिंग विद 0 1 है, so epsilon is also not ending with 0 1, single 1 is not ending with 0 1, single 0 is not ending with 0 1। तो ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं। सो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये केसेस मिल जाएंगे। ओके, इन जनरल दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ओके, कोई भी एग्जामिनर इतना लिखने पर भी आपको आई थिंक ही विल गिव यू फुल मार्क्स। ओके, बट दीज आर ऑल्सो विल बी द वर्ड्स जो कि इससे बच जाएंगे, लेफ्ट रह जाएंगे। ठीक है, अब अगर कम से कम 2 लेंथ है तो वर्ड कौन कौन से होंगे? 0 0 1 0 एंड 1 1 वो यहाँ कवर होगा, और 1 से और 2 से ज्यादा लेंथ वाले सारे इस 0 + 1 एस्ट्रिक और इसके थ्रू कवर हो जाएंगे। इज इट क्लियर क्लास? के इज क्लियर? तो जिन जिन क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी आउट ऑफ बाउंड थिंकिंग है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा और जो है गहरा एनालिसिस कर सकें। ओके, सो देन नेक्स्ट इज एम। M is all strings having at least 2 occurrences of the substring 00। ये तो सिंपल है, क्या लिखेंगे बताइए क्लास? 0 + 1 asterisk 0 + 1 asterisk 00 00 00 0 + 1 asterisk 00 एंड 0 + 1 asterisk। देखिए मैंने कहा 2 occurrences of the substring 00, बट वो 2 occurrences simultaneous हैं, ये तो जरूरी नहीं है ना, इज इट? सो बिल्कुल वैसे जैसे मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 2 occurrences of A's, तो मैं क्या करता था 2 A लिखता था, उसके बाद अब 3 पोजीशन खाली बची मेरे पास, ये और ये। इस पे क्या आ सकता है? केवल B's आ सकते हैं। तो मैं क्या लिखता था? B asterisk B asterisk B asterisk। अगर मैं exactly 2 occurrences of A, और अगर मैं एटलीस्ट 2 occurrences of A कहता हूँ तो मैं क्या करता था? A + B इट्स होल एस्ट्रिक। ऐसे यहाँ पे भी A + B इट्स होल एस्ट्रिक, और यहाँ पे भी A + B इट्स होल एस्ट्रिक, ये कर देता था। यहाँ मेरा क्या है?
एटलीस्ट 2 occurrences ऑफ डबल जीरोस। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, इधर भी 0 + 1 एस्ट्रिक, इधर भी 0 + 1 एस्ट्रिक, इधर भी 0 प्लस। अगर मैं कहता एग्जैक्टली 2 occurrences ऑफ डबल जीरोस, तो यहाँ मेरे क्या आता 1 एस्ट्रिक, 1 एस्ट्रिक और 1 एस्ट्रिक। क्लियर है क्लास? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एम तक आ गए। देन क्वेश्चन नंबर 9। सर इसमें फिर होल एस्ट्रिक होगा क्योंकि एटलीस्ट 2 है ना। हाँ, एटलीस्ट 2 occurrences ऑफ डबल जीरोस। तो दो occurrences ऑफ डबल जीरो तुमने कर दिए, बट इस 0 + 1 एस्ट्रिक से कोई और डबल जीरो भी तो जनरेट हो सकता है। इसी तरह से इस 0 + 1 एस्ट्रिक से कोई डबल जीरो भी तो जनरेट हो सकता है। इसी तरह से इस 0 + 1 एस्ट्रिक से कोई और डबल जीरो भी तो जनरेट हो सकता है, या एक से ज्यादा डबल जीरोस भी तो जनरेट हो सकते हैं। तो कम से कम 2 आएंगे, ये तो मैंने लिख करके इंश्योर कर लिया, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इज इट? सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 0 + 1 एस्ट्रिक। अगर मैं कहता एग्जैक्टली 2 occurrences ऑफ जो है जीरोस, ओके, डबल जीरोस, तो मेरे यहाँ 2 डबल जीरो आते, फिर मुझे यहाँ और यहाँ जो भी एक्सप्रेशन लिखता उस एक्सप्रेशन में ये इंश्योर करना पड़ता कि कहीं भी पेयर ना आए जीरोस का। सिंगल जीरो तो अलाउड हो, बट पेयर ना आए। इज इट? अगर पेयर नहीं आया तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होता था, 1 + 0 1 का एस्ट्रिक। इज इट? तो वो मैं यहाँ लगा सकता था, लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं लगा सकता था। क्यों? यहाँ ऑलरेडी 0 आ गया। अगर मैं इसके बाद 0 1 लेता तो 0 0 बन जाएगा, जो कि मेरा फिर वायलेट करेगा। तो मैं वहाँ क्या करता, 1 1 एस्ट्रिक 0, इट्स होल एस्ट्रिक। इन 2 पोजीशंस पे मैं क्या लगा था, ये वाला लगा था। पहली पोजीशन पे क्या लगा था, ये वाला लगा सकता था। ठीक है? इज इट? अगर मेरा ये होता कि मुझे एग्जैक्टली 2 पेयर चाहिए डबल जीरोस के, बाकी नहीं चाहिए, लेकिन सिंगल जीरो तो आ सकते हैं ना। क्लियर है? और अगर मैं कहता कि एग्जैक्टली 2 पेयर ही चाहिए डबल जीरोस के, उसके अलावा कोई और जीरो ही नहीं चाहिए, तब मैं यहाँ क्या लिखता, तब मैं यहाँ लिखता 1 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक और 1 एस्ट्रिक। इज इट क्लियर क्लास? ये तीनों केस अलग अलग क्लियर है ना, कि एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ जीरोस, एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ जीरोस, और एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ जीरोस विदाउट एनी अदर जीरो। क्लियर है क्लास? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लैंग्वेज निकालना है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या दिया है, बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या होगी? ए और बी पे स्ट्रिंग होगा। देखिए बीज आ सकते हैं, फिर एक ए आएगा, फिर कुछ बीज आ सकते हैं, फिर एक ए आएगा, फिर कुछ बीज आ सकते हैं। इज इट? सो क्या होगा, ऑल वर्ड्स ओवर A and B having exactly 2 A's. having exactly 2 A's। वेरी गुड, exactly 2 A's। आप देखिए इसमें केवल और केवल 2 ए हैं, इसके अलावा कहीं ये पॉसिबल है ही नहीं, और बी कहीं भी कितने भी नंबर में आ सकते हैं। तो सारे वो स्ट्रिंग जिनमें एग्जैक्टली 2 ए हैं वो इससे रिप्रेजेंट होते हैं। क्लियर? हमने इस लैंग्वेज को दे करके इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पहले ही लिखा हुआ है। अब क्या है, उल्टा कर रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको एनालाइज करना है। इज इट? देन क्वेश्चन नंबर 10, रेगुलर एक्सप्रेशंस ओवर ए बी। यहाँ पे वापस क्या है, देखिए सीक्वेंस दिए हुए हैं, L = b to the power m a b to the power n such that m greater than 0 and n greater than 0. What I should write, class? B B asterisk A B B asterisk. Sorry, a, just 1 minute. Yes, B B asterisk, then A, and then B B asterisk. Is it clear? क्यों m greater than 0? m greater than 0 का मतलब क्या है, m greater than or equal to 1, यानी कि m की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1।
यानी कि एक बार तो आएगा भी और ज्यादा बार कितनी बार भी आ सकता है, दैट्स व्हाई बी एस्ट्रिक। एंड सिमिलर इज द सिचुएशन हियर फॉर एन। ओके, तो वैसे ही कंडीशन है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो हमेशा इस साइन पे ध्यान दीजिएगा कि व्हेन इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। नॉर्मली ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो है उससे आपको बनाना आसान पड़ता है, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ आ रहा है उतने तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद उसका एस्ट्रिक आएगा। इज इट क्लियर है? तो यहाँ मेरे पास ग्रेटर देन वाला है, तो मैं ग्रेटर देन वाले को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो मेरे पास यानी कि एक बी कम से कम आएगा, उससे ज्यादा कितने में आएंगे? सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट बी बी एस्ट्रिक। सिमिलरली आप 10th का ए था ये, सिमिलरली आप 10th का बी और सी भी कर सकते हैं। इज इट? सो दैट दीज आई एम लीविंग, ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट में है। ओके, तो आप इनको इसी तरह से कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये वापस आपको एक्सप्रेशन दी हुई है और लैंग्वेज फाइंड आउट करनी है। मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ए प्लस बी एस्ट्रिक ए बी। क्या होगी लैंग्वेज? ऑल वर्ड्स A and ending with AB. starting with A and ending with AB. Is it clear? Then it was first, then second. It is A asterisk B plus B asterisk A. So what will be the language? All strings over AB, where just tell me class, where a string of A's Either start with Sir, A and of A and end with B, or starting with any number of B or end with a A. or a string of B's followed by an A. Is it? Either a string of A's followed by B or a string of B's followed by A. Simple. Is it clear? जैसा एक्सप्रेशन लिखी एज इट इज वही मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। A string of A's followed by a B or a string of B's followed by A. Is it clear, class? Then C, A asterisk plus AB plus A, its asterisk. Just tell me, class. Sir, all string having any numbers of A or starting with A. और स्टार्टिंग विद ए, यस ये बात तो सही है। इसमें जितने भी स्ट्रिंग होंगे वो सब स्टार्ट विद ए होंगे, स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए। ओके, इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है? नो टू और मोर साइमल्टेनियस बी कैन अकर। These can occur. आप देखिए, जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिले, ए बी प्लस ए या ए प्लस ए बी या ए प्लस बी ए लाइक दिस, तो हमेशा आप देखिए कि क्या चीज़ पॉसिबल नहीं। देखिए जब भी आप इस फैक्टर को लेंगे ए बी आया, उसके बाद अगला फैक्टर या तो आप ए लेंगे या ए बी ही लेंगे। तो अगर ए बी लें या ए लें, यानी कि इस बी के बाद एक ए आना नेसेसरी है, यानी कि इस बी के साथ अगला बी नहीं आ सकता, यानी कि टू और मोर साइमल्टेनियस बीज आर नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। ओके, हमेशा किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। इज इट? और इट इज नॉट हैविंग इवन एनी बी, सो इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ एज ओनली। ओके, सो तीसरी कंडीशन आपकी क्या होगी? और स्ट्रिंग ऑफ एज ओनली। तो आप चाहे तो कभी अपनी लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में कि लैंग्वेज इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वर्ड्स ओवर ए कॉमा बी सच दैट नंबर 1 strings starts with an A. Second, no two or more simultaneous B's can occur, or a string is
containing only A's, no B's, like this. So you can write like this also. Is it clear, class? 11th A, B, C. Then come on D. 11th D. 11th D is 1 1 plus 0, its asterisk, and then 0 0 plus 1, its whole asterisk. Is it? Class. Certain सी बात है, it will be a string of zeros and ones. So sigma is 0, 1. So 0, 1 is sigma पे all strings over sigma. So all strings over sigma, where one comes in even clumps, even followed by a string where 0 comes in even clumps. Is it clear? आप देखिए, अगर आप स्ट्रिंग के पहले हिस्से को ले, इतने हिस्से को, so it is a string of zeros and ones where ones appear in even clumps. जीरो कैसे भी आ सकते हैं, इवन भी नंबर में भी आ सकता है, ऑड नंबर में भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, हो सकता है ही ना, एनी कंडीशन इज देयर. ओके, सो बट वंस जहां भी आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, इवन क्लम्प्स में. फॉलोड बाय ये स्ट्रिंग, इसके बाद इतने हिस्से को देखिए, फॉलोड बाय अनदर स्ट्रिंग वेयर zeros comes in even clumps. Is it clear, class? क्लास क्लियर है? यस सर. Yes. ओके, हम कुछ नहीं कर रहे, देखिए हम केवल जो है जो लिखा है एज इट इज उसको फॉलो कर रहे हैं और उसी फॉर्म में हम जो है लिखते जा रहे हैं. अब देखिए ई है 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 0, इसके बाद ब्रैकेट में आया 0 0 प्लस 1 1, इट्स होल एस्ट्रिक, एंड देन अगेन 0 1 प्लस 1 0, और उसके बाद ये जो पूरा फैक्टर है, इस पूरे के पूरे फैक्टर का आपके ले रहे हैं एस्ट्रिक. इज इट? दिस इज द लैंग्वेज. सो इट इज सिंपली इवन नंबर ऑफ zeros and even number of ones. So basically our this language is what? It is even. जब हमने FA का डिजाइन डिस्कस किया था तो हमने ये लैंग्वेज डिस्कस की थी, इसका FA बनाया था. उस वक्त में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखा था. अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. वहाँ शायद हमने A और B के टर्म्स में लिखा था, नहीं शायद 0 and 1 के टर्म्स में लिखा था. ओके, तो यही रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा था. आप देखिए यहाँ क्या है, अगर मैं केवल इस वाले फैक्टर को देखता हूँ तो इट इज हैविंग ए बैलेंस ऑफ जीरोज एंड वंस. तो नंबर ऑफ जीरोज चाहे अगर ये वाला लूँ तो भी नंबर ऑफ जीरोज इवन है, नंबर ऑफ वंस इसमें है ही नहीं तो नंबर ऑफ वंस भी इवन है. ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज क्या है 2, नंबर ऑफ वंस क्या है 0. ओके, अब अगर ये वाला फैक्टर ले लूँ तो यहाँ भी देखिए बैलेंस्ड है. यहाँ नंबर ऑफ जीरोज क्या है 0 एंड नंबर ऑफ वंस क्या है 2, यानी कि इनमें से कोई सा भी फैक्टर आ जाए और इस फैक्टर का जैसे यहाँ बाहर की तरफ स्टार है, कितनी भी बार मैं रिपीट कर लूँ, इससे मेरा 0 और 1 का बैलेंस बिगड़ने वाला नहीं है. नंबर ऑफ जीरोज भी इवन रहेंगे और नंबर ऑफ वंस भी इवन रहेंगे इतने हिस्से से. अब आते हैं इस वाले हिस्से पर. इस वाले हिस्से में देखिए पहला पोर्शन, देखिए ये पोर्शन, ये क्या है 0 1 प्लस 1 0, यानी कि यहाँ एक 0 है एक 1 है, इसी तरह यहाँ भी एक 1 है एक 0 है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वंस दोनों क्या है ऑड है, दोनों क्या है ऑड है. लेकिन इसको देखिए, इसको हमने यहाँ इधर बैलेंस कर लिया, वापस 0 1 प्लस 1 0. ओके, तो अगर यहाँ पे ऑड एक बार आया था तो एक बार 0 और 1 यहाँ भी आएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस क्या होगा इवन. और बीच वाला जो फैक्टर है ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी इवन है और उसका कितनी भी बार रिपीट करें
तो ये क्या है, नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस इवन ही रहेंगे। तो यहाँ तो नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस इवन है, यहाँ से ऑड हुए थे लेकिन यहाँ से फिर वापस इवन हो गए थे, बैलेंस हो गए थे। यानी कि ये पूरा फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस इवन ही रहेंगे। यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस इवन ही रहेंगे। और जितने भी सारे फैक्टर्स हो सकते थे 0 1 या 1 0 के, वो सब हमने यहाँ ले लिए हैं। इज इट? तो यानी कि सारे के सारे वर्ड्स जो 0 1 पे हैं, जिनमें नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, वो इसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द लैंग्वेज इवन इवन। इज इट? सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काइंड की एक्सप्रेशंस हैं। इस तरह की जो ये ट्रिकी एक्सप्रेशंस हैं वो आप एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब आपने उसे पहले देख रखा होगा या पहले उस टाइप की कोई एक्सप्रेशन आपने कर रखी होगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस इसमें भी जरूरी है। क्लियर है क्लास? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I think time is also over, so I am ending at this point of time. वैसे केवल 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, तो आई होप वैसे आपने कर लिए होंगे। बचे हुए क्वेश्चंस या कोई और भी डिफिकल्टी होगी, ना केवल रेगुलर एक्सप्रेशंस में बल्कि किसी भी टॉपिक में, so that we can discuss in tomorrow's lecture. Tomorrow's lecture is the last lecture before your CTs. आपके मंडे से CTs स्टार्ट हैं। ओके, CT का सिलेबस सबको मालूम है, जितना कुछ भी अब तक कवर कराया है हमने, दैट ऑल इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर दी CT 1। ओके, तो आपकी कोई भी डिफिकल्टी किसी भी जो है टॉपिक में, किसी भी पोर्शन में, या बचे हुए रेगुलर एक्सप्रेशन के जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, दीज विल बी डिस्कसिंग इन टुमारोज लेक्चर। इज इट क्लियर? ओके, so if you have any doubt you can ask, otherwise I am closing at this point of time. Class, is there any doubt? I am assuming that there is no doubt, so I am closing here. You can leave the class and go to the next class.